السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 179 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 سے 195 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلا جو ہمارا درس گزرا اس میں آخر میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین اب توحید کا بیان کر رہا ہے، عقیدے کا بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی آیات میں بھی عقیدے سے جڑی ہوئی بنیادی اور بڑی بڑی باتیں ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ میں نفع پہنچا سکتا ہوں خود کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، میری اپنے آپ پر بھی کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائیاں حاصل کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی اللہ کے نبی اپنے بارے میں یہ انکار کر رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر مکمل غیب کا مجھے علم ہوتا تو ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھے نہ آتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کو، ایمان والی قوم کو۔ یعنی اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، میرے اختیار میں تو اپنا نفس ہی نہیں ہے، جو میرے ساتھ اچھا برا ہو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، میں غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ جتنا آپ کو بتا دے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، پھر ان سے ان کی بیوی کو بنایا تاکہ انسان وہاں سکون حاصل کرے۔ بیوی کو بنانے کا مقصد، عورت کو بنانے کا مقصد اللہ نے بتایا تاکہ مرد وہاں سکون حاصل کر سکے۔ فلما تغشاها، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے ملنے کو بیان کر رہا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں، تو عورت
हमल से हो जाती है और उसी के साथ वो जिंदगी गुजारती है। यानी मर्द औरत मिलते हैं, मर्द औरत को ढांकता है, यानी ऊपर की तरफ से जब मर्द आता है उससे औरत को अगर हमल होता है तो उस हमल के साथ भी वो चलती है, खफीफ हालत में चलती है, शुरुआती दौर में आसानी से चल पाती है। फलम आजकलत, लेकिन जब वो और ज्यादा भारी होने लगती है, बच्चा हमल बड़ा होने लगता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, तो माँ बाप उस वक्त में ये दुआ मांगते हैं कि हमारे रब, अगर तूने हमें अच्छी औलाद दे दी, बेऐब औलाद दे दी, कोई परेशानी वाली औलाद ना दी, तो हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। यानी अल्लाह ताला से माँ बाप दोनों दुआ मांगते हैं। इब्तिदाई मरहला होता है, हमल खफीफ होता है, उसके साथ भी औरत जिंदगी गुजारती है, जब भारी होता है तब भी जिंदगी गुजारती है। माँ बाप अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह बेऐब औलाद देना, उसके हाथ पैर आंख दिमाग सब सलामत देना, हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। ये तब तक कहते हैं जब तक कि औलाद पैदा ना हो। अब जब औलाद पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला बेऐब औलाद दे देता है, तो अल्लाह के साथ शिर्क करने लगते हैं, जो अल्लाह ने दिया उसमें शिर्क करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला तो पाक है उनके शिर्क से। अल्लाह ताला यहाँ पर कुफ्फारे मक्का का तरीका बता रहा है कि जब तक औलाद नहीं होती थी अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह देता, शिर्क करने लग जाया करते थे। अल्लाह ताला यहाँ पर उनके शिर्क का इनकार करते हुए इरशाद फरमाता है, अयुशरकून मा ला यखलुकु शैअन व हुम युखलकून, क्या ये ऐसे लोगों को अल्लाह का शरीक करते हैं कि जिन्होंने कुछ पैदा नहीं किया बल्कि वो तो खुद ही पैदा हुए, वो खुद भी पैदा हुए। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा ना करता वो दुनिया में पैदा ना हो पाते, तो अल्लाह ने तो उन्हें खुद को पैदा किया है, अल्लाह ताला उनकी तख्लीक करने वाला है। तो ऐसे लोगों को अपना रब कैसे बनाते हैं? वला यस्ततिऊन, अल्लाह इनकी दूसरी बुराई बता रहा है कि वला यस्ततिऊन लहुम नसरा, ये इनकी मदद करने की भी ताकत नहीं रखते बल्कि खुद की मदद की भी ताकत नहीं रखते। यानी ना पैदा कर सकते हैं बल्कि वो पैदा हुए, ना मदद कर सकते हैं बल्कि वो तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद क्या करेंगे? अगर मदद कर सकते तो क्या वो मरते? अगर मदद कर सकते तो क्या वो दुनिया से जाते? वो दुनिया में रहते ना, हमेशा तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारे काम पूरे करते। वो मर गए, वो खत्म हो गए, तो जब वो अपनी मदद ना कर पाए तो तुम्हारी मदद वो क्या करेंगे? अल्लाह ताला देखिए कितने प्यारे अंदाज में, कितने प्यारे उस्लूब में हमें तौहीद और शिर्क का फर्क बता रहा है। वो चाहता है कि बंदे शिर्क से बच जाएं और तौहीद को अपनी जिंदगी बनाएं। वाइन तदउहुम, अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी तीसरी बुराई बता रहा है कि अगर तुम उन्हें बुलाओ हिदायत की तरफ तो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। तो एक ही बराबर है, आप उन्हें दावत दें या खामोश हो जाए। यानी अगर आप दावत भी देंगे ना तो मुशरिक इतने पक्के हो गए कि आपकी सुनते ही नहीं है, तो आप उन्हें दावत दे दें या खामोश हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक बार आपने अपना काम पूरा कर दिया, दावत देकर उन्हें समझा दिया, अब उसके बाद भी ना माने तो ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इन्नल लदीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अब यहाँ पर अल्लाह ताला उन लोगों को जिनको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है उनकी तीसरी बुराई बता रहा है कि इन्नल लदीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, वो लोग जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो ना, वो तो खुद अल्लाह ताला के तुम्हारे जैसे बंदे हैं। अल्लाह ने जैसे तुम्हें बनाया उनको भी बनाया है। फदऊन, तुम उन्हें पुकारो, क्या तुम्हारी पुकार का जवाब देते हैं अगर तुम सच्चे हो? यानी उन मुर्दों को जरा पुकार कर तो दिखाओ, इन मूर्तियों को पुकार कर तो दिखाओ, इन सनम को पुकार कर तो दिखाओ। पुकारो, क्या वो जवाब देते हैं? तुम्हारी बातों का आंसर करते हैं? तुम पुकारो तो क्या वो जवाब में तुम्हें आवाजें देते हैं? अगर सच्चे हैं तो बताओ हमें। उसके बाद अल्लाह ताला इनके बारे में चौथी बुराई बता रहा है, क्या लहुम अर्जुलन यमशूना बिहा, क्या इन बुतों के पैर हैं जिससे वो चल सके? क्या इनके हाथ हैं जिससे वो पकड़ सके? क्या इनकी आंख है कि वो देख सके? क्या इनके कान हैं कि वो सुन सके? यानी तुमने तो गैरुल्लाह को अपना माबूद बना लिया। पैर हैं चलने के लिए, हाथ है पकड़ने के लिए, आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, नहीं है इनके पास। कुरिदु शुरकाकुम, तो अल्लाह ताला एंड में अल्लाह के नबी को कह रहा है कि अब इनको ये कहो कि लाओ तुम्हारे सारे माबूदों को बुला लो, करे वो मेरा जो बिगाड़ सकते हैं और उसमें कोई मोहलत मत दो, करो, लाओ करके दिखाओ। अगर तुम्हारे माबूद सच्चे हैं, जिनकी तुम इबादत करते हो वो सच्चे हैं, अगर तुम अपने सच्चा माबूद उन्हें मानते हो तो लाओ जरा करके दिखाओ, मेरा कुछ बिगाड़ कर वो दिखाएं, मेरा कुछ वो खराब करके दिखाएं। अगर ऐसी उनकी ताकत है तो वो करके दिखाएं, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मोहलत मत दो, डायरेक्ट करके दिखाओ। तो अगर आप आज की आयत पर गौर करें तो आज की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यारे अंदाज में तौहीद का तस्करा फरमाया है, तौहीद को समझाया है, हमें बताया कि अल्लाह के नबी तो खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप में नफे नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं तो पहुंचाने वाला डराने वाला हूँ। फिर अल्लाह ने तख्लीक के बारे में बताया कि हमने तुम्हें आदम और हव्वा से पैदा किया। फिर अल्लाह ने हमल के बारे में बताया। फिर अल्लाह ने शिर्क की बुराई को बताया, मुशरिकीन के माबूदों की बुराई को बताया कि तुम किनको अपना माबूद बनाते हो, वो तो खुद पैदा हुए, उनको माबूद
बनाते हो, मदद करने की ताकत नहीं रखते उनको माबूद बनाते हो, पुकारो तो जवाब नहीं देते उनको माबूद बनाते हो, और चौथी बुराई, ना उनके पैर है, ना हाथ है, ना कान है, ना आंख है, तुम उनकी इबादत करते हो। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यारे अंदाज और उसलूब के अंदर हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि हम समझे और एक अल्लाह की इबादत करें। अब उसके बाद आज की आयत में आए हुए मुश्किल अल्फाज, वाला अमलिकू, आई हैव नो कंट्रोल, मैं ताकत नहीं रखता, मुझे अपने आप पर ही ताकत नहीं, कंट्रोल नहीं है, मतलब मेरा हाथ मेरा पैर कैसे काम करेगा वो तो अल्लाह डिसाइड करता है। नफसी, माई सेल्फ, मैं अपने आप को, नफअन बेनिफिट और जर्रन हार्म, यानी मैं अपने आप को फायदा नुकसान से बचा नहीं सकता, सब अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत है। लस तक सर्द, आई कुड हैव एक्वायर्ड, यानी मैं अगर कर सकता तो बहुत सारा अपने लिए अच्छा एक्वायर्ड कर लेता, बहुत सारा अच्छाई अपने लिए ले लेता, भलाइयां अपने लिए ले लेता। मस कहा जाता है टच करने को, छूने को। नफ्सुन वाहिदा कहा जाता है वन सोल, एक जिस्म। लियस्कुना इलैहा, दे फाइंड देयर कंफर्ट इन हर, यानी वो उसमें अपना कंफर्ट तलाश करते हैं, औरत से सुकून हासिल करते हैं। जैसे औरत होता है ना, औरत के अलग अलग किरदार होते हैं, यहाँ पर स्पेशली बीवी का किरदार बताया जा रहा है कि बीवी वो कि शौहर उसके पास आए तो सुकून मिले, इत्मीनान मिले, मर्द का टेंशन खत्म हो जाए, गम फिक्र खत्म हो जाए। तगशाहा कवर्स हर, उसे ढांक ले, यानी शौहर बीवी को ढांक ले। हमल, हमलन खफीफा कहा जाता है लाइट बर्डन, बिल्कुल हल्का सा वजन। हमल से मुराद यहाँ पर प्रेगनेंसी है, पर हमल को कहा जाता है हमल क्योंकि वो एक बोझ होता है। असल में हमल का मतलब होता है वेट, वजन, बर्डन, पर हमल हमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर वजन होता है जिससे लेकर तो औरत अपनी 9 महीने की जिंदगी को गुजारती है। अर्जुल कहा जाता है फीट को, कदमों को। यमशून दे वॉक, क्या ऐसे कदम है जिससे वो चल सके। यबतशून दे स्ट्राइक, वो छू सके, टच कर सके, अपने हाथों से पकड़ सके, ऐसे हाथ है उनके पास। की दून, तुम करो मेरे लिए साजिश करो, बिगाड़ो, मेरा क्या बिगाड़ना चाहते हो, मेरे खिलाफ जो प्लान करना है करो, करके दिखाओ। ये अल्लाह के नबी उन्हें एक तरीके से धमकी दे रहा है कि अगर तुम्हारी ताकत है तो लाओ जरा मेरा कुछ करके दिखाओ, पर अल्लाह ताला की ताकत और इजाजत के बिना तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। अब आज की जो आयत है, इन आयत के अंदर बहुत सारी चीजें हैं तदब्बुर के ताल्लुक से, बहुत सारी चीजें हैं गौर करने के ताल्लुक से। नंबर 1, बंदे का अपनी कमियों का इकरार करना बंदे होने की दलील होती है। यानी जब बंदा अपनी कमियां बताता है ना, तो इससे साबित होता है कि वो बंदा है, और जो सिर्फ अपनी बड़ाइयां बताए मतलब उसका मतलब वो बंदा नहीं बचा है, वो अपने आप को रब समझने लगा है। अल्लाह ताला हमें ऐसी रुबूबियत के कायल होने से, ऐसे तकब्बुर करने से बचाए। जब तक बंदा अपना इकरार करता है, देखिए अल्लाह के नबी का मकाम कितना आला है, आप रसूलों के सरदार, आप नबियों के सरदार, आप अल्लाह ताला के महबूब, आपने अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता था, अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम और मर्तबा दिया किसी को नहीं दिया, उसके बाद भी आप अपनी कमियां बता रहे हैं कि मैं तो नफे का मालिक नहीं हूँ, मैं तो नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं तो गैब नहीं जानता हूँ। तो बंदा जब अपनी कमियां बताता है ना अल्लाह के सामने, बंदों के सामने, तो उससे उसमें बंदे होने का एहसास पैदा होता है। अरे हम तो साहब बड़े मोहताज हैं, हम तो कम इल्म हैं, हमें तो बस इतना ही पता है, हम क्या ताकत रखते हैं, ताकत तो अल्लाह की, हम क्या कुदरत रखते हैं, कुदरत तो अल्लाह की है। तो बंदा जब अपनी कमियां बताता है ना, इससे उसमें बंदे होने का एहसास पैदा होता है। ये चीज हमें बड़ी प्यारी आज की आयत में पहली पता चलती है। नंबर 2, कभी कभी इंसान को किसी चीज के लिए अपने आप को बेहतर नहीं समझना चाहिए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, माफी चाहूंगा इस पॉइंट को ऐसे लेके कि कभी कभी इंसान अल्लाह के फैसलों को समझ नहीं पाता, उसे लगता है ये मेरे लिए अच्छा है, पर वो उसके लिए अच्छा नहीं होता तो अल्लाह दूर कर देता है। मेरे लिए ये बुरा है, पर मेरे लिए वो बुरा नहीं होता, अल्लाह उसे करीब कर देता है। यानी कभी कभी इंसान अपना भला बुरा समझ नहीं पाता है, इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पर बंदे को सब्र करना चाहिए। इस पॉइंट को आप ऐसे रखें, पॉइंट नंबर 2 को, कि इंसान कभी कभी अपना भला बुरा समझ नहीं पाता है, इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पर सब्र कर लेना चाहिए। क्योंकि वक्ती तौर पर हमें लगता है अरे ये तो मेरे लिए बहुत बेहतर है, ये तो मुझे मिल ही जाना चाहिए, अल्लाह दूर कर देता है क्योंकि अल्लाह जानता है तेरे लिए बेहतर नहीं है। कभी कभी हमें लगता है ये तो बहुत बुरा, अपने करीब नहीं आना चाहिए, अल्लाह करीब कर देता है क्योंकि अल्लाह जानता है तेरे लिए वो बेहतर है। अल्लाह कुरान में इसको और ज्यादा डिटेल में बयान करता है, और जिंदगी में आप तजुर्बों में ये चीज देखते भी है ना, कई मरतबा हमें लगता है कि साहब ये घर मेरे लिए बहुत अच्छा है, बस ये तो मिल ही जाना चाहिए,
सौदा नहीं होता, बाद में पता चलता वो तो गलत था, पेपर गलत थे, ऐसा था वैसा था। कोई रिश्ता हमें लगता है कि ये रिश्ता ही मेरा होना चाहिए, यही मेरा निकाह होना चाहिए, यही मेरी शादी होना चाहिए। अल्लाह ताला जानता है तुम्हारा बेहतर, तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा बुरा। अल्लाह ताला जो बेहतर होता है करीब कर देता है, जो बुरा होता है उससे दूर कर देता है। तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह ताला के फैसलों पर सब्र करे, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारा भला बुरा तुमसे ज्यादा जानता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत है, इस पर बंदे को यकीन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अल्लाह के नबी अपने लिए इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं, तो फिर कोई और कैसे गैब का दावा कर सकता है? अल्लाह के नबी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता, मुकम्मल गैब का मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह जितना बताता है मैं बंदों को बताता हूँ, मुकम्मल गैब नहीं जानता। तो जब अल्लाह के नबी अपने लिए गैब का इनकार कर रहे हैं, तो कोई और ये दावा कर सकता है मैं तो ये जानता हूँ? जैसे कई हमारे यहाँ नुजूमी होते हैं, कई अपने आप को बाबा बताने वाले होते हैं, हम तो ये जानते हैं, वो जानते हैं, वो जानते हैं, वो जानते हैं। आप समझ जाओगे शैतान का वली है, वो झूठा है। अगर सच्चा होगा ना तो अपने आप को छुपाएगा, बताएगा नहीं। और इससे ये भी पता चला कि जब अल्लाह के नबी अपने लिए गैब का इनकार करते हैं, तो इसका मतलब कोई और गैब का जानने वाला इस कायनात में हो ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 4, अल्लाह के नबी अगर गैब जानते तो कभी आपको कोई परेशानी नहीं आती। कई लोग हमारे यहाँ अल्लाह के नबी के गैब के दावेदार हैं, उन्हें ये लगता है कि अल्लाह के नबी के बारे में अगर हम ये कह दें कि आप गैब नहीं जानते तो आपकी शान कम हो जाएगी। आपकी शान बढ़ती है, आपकी शान कम हो ही नहीं सकती। आपकी शान को अल्लाह ताला ने वैसे ही इतना ऊपर रखा है कि उसको कोई कम नहीं कर सकता। और अल्लाह के नबी देखिए कि अल्लाह ताला कितने प्यारे अंदाज में ये बात बता रहा है कि कह दीजिए कि अगर मैं गैब जानता तो भलाई भलाई ले लेता, बुराइयों से बच जाता। अब जिंदगी में कितनी तकलीफें आपको आई, आप कितने मकामात पर परेशान हुए। आप गज़वे बदर में अल्लाह ताला ने फतह दी, गज़वे उहद के अंदर आपके खिलाफ दुश्मनों ने साजिशें कर ली, आप गिर गए, गड्ढे के अंदर गिर गए, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, सहाबा इकराम शहीद हो गए। अगर आप गैब जानते तो आप रोक लेते ना, आप बता देते ना। कितने वाकयात अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर हुए। हजरत उस्मान गनी को आपने बैत करने के लिए भेजा, बैतुर रिजवान के अंदर खबर मशहूर हो गई कि आपको मार दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया, आपने बैत कर ली। अगर आपको गैब पता होता तो आप क्यों बैत करते? आपको तो पता ही होता है ना। हजरत आयशा पर इल्जाम लगाया गया कि ये जिनाकारी की है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह के नबी लंबे अरसे तक परेशान रहे। गैब जानते तो आप परेशान होते, आपको तो सब पता होता क्या है क्या नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर मुझे गैब का इल्म होता ना, मैं सारी भलाइयां हासिल कर लेता, बुराई से बच जाता। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पर यह अकीदा बता रहा है कि अल्लाह के नबी को अगर गैब का इल्म होता तो भलाइयां ले लेते, सारे अच्छाइयां ले लेते, और कभी आपको और आपके सहाबा को कोई तकलीफ नहीं आती। तकलीफ आई, इसका मतलब अल्लाह के नबी मुकम्मल गैब का इल्म नहीं रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, नबी की शान में इल्म गैब साबित करने से ज्यादा आपकी दावत पर गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी की शान को बढ़ाना, जैसे आज हमारे लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं ना, कव्वाली पढ़कर बढ़ा रहे हैं, अल्लाह के नबी को नाउजुबिल्लाह अल्लाह तक का दर्जा दे देते हैं। तो अल्लाह के नबी की शान में इल्म गैब साबित करने से ज्यादा बेहतर है कि आपकी दावत पर गौर करो। जैसा कि अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि अल्लाह के नबी कह रहा है मैं तो बस क्या हूँ, बशीर और नजीर हूँ, मैं तो खुशखबरी देने वाला हूँ, डराने वाला हूँ। तो चाहिए कि अल्लाह के नबी की दावत पर गौर किया जाए। आप दावत क्या देते थे, आप दीन कैसे बताते थे, आप हलाल कैसे बताते थे, आप हराम से कैसे रोकते थे, आप लोगों को कैसे समझाते थे, आपकी दावत का अंदाज क्या था, दावत की असलियत क्या थी, दावत की खासियतें क्या थी, इन पर गौर करना चाहिए। ना कि हम इस पर लड़ते फिरे कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था कि नहीं था, आपका मकाम क्या था, आपका मर्तबा क्या था। इससे बेहतर है कि आपकी दावत को समझा जाए और आपकी दावत पर बंदा मोमिन मेहनत करे। पॉइंट नंबर 6, दाई का काम डराना भी होता है और खुशखबरी देना भी होता है। दोनों काम आपको करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ बशारत बशारत आप करते रहें, नमाज की फजीलत, ज़कात की फजीलत, सदके की फजीलत, इसकी फजीलत, उसकी फजीलत, अरे साथ में अजाब भी बताओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये अजाब आएगा, ये अजाब आएगा, जहन्नम का अजाब आएगा, अजाब कब्र आएगा, दुनिया में अजाब आएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। कभी आपको बशारत भी देना पड़ेगी, कभी आपको डराना भी पड़ेगा, कभी अच्छाइयां भी बताओ और कभी बुराइयों से भी डराओ। ये दाई में दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन का पैक होना चाहिए जिसमें खुशखबरियां भी हो और जिसमें डराना भी हो। क्योंकि अल्लाह के नबी का यही तरीका था कि आप बशारतें भी देते थे और आप डराते भी थे। पॉइंट नंबर 7, जब इंसान की असल एक है तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन गलत कौन सही, आप कैसे फैसला कर सकते हो? यानी जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, हम खान हैं, हम पठान हैं, हम शेख हैं, हम जोलाहे हैं, हम ये हैं, हम वो है। हमारे यहाँ पर कितना ज्यादा इख्तलाफ कर लिया गया है, हम इनमें शादी नहीं करते, ये तो छोटे लोग हैं, तो जात के छोटे लोग हैं। आपकी असल एक है, आपके अब्बा आदम एक है, आपकी अम्मी हवा एक है। जब असल एक है
तो फिर नीचे इख्तलाफ क्यों? अपने आप को बड़ा छोटा क्यों मानना? अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है ये सब कबीले इसलिए बनाए थे ताकि तुम पहचान सको, पर हम तो ऐसे फंसे उन कबीलों के अंदर कि हम इनकी लड़की नहीं लाते, हम इनके यहाँ लड़की नहीं देते, ये तो छोटे लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो वैसे लोग हैं। इस्लाम में सिस्टम और कल्चर नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारी असल एक है, हमारे बाप एक है, हमारी माँ एक है, इसलिए हमारे दरमियान कोई ऊंच नीच इस्लाम के अंदर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, मुस्लिम औरत वो है कि जिसकी वजह से उसके घर में सुकून रहे। अगर वो हमेशा झगड़े करवाए, अगर वो हमेशा लड़ाई करवाए, शोहर घर में आए टेंशन देना शुरू कर दे, परेशान करना शुरू कर दे, छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े इशू बनाकर लेकर आए, इसका मतलब वो औरत औरत होने का हक अदा नहीं कर पा रही है। अल्लाह ताला ने औरत की जिम्मेदारी बताया है सुकून, कि औरत सुकून है, औरत इत्मीनान है, कि आदमी जब घर में आए ना उसका टेंशन खत्म कर दे, गम खत्म कर दे, उसके गमों को छोटा कर दे, उसकी फिक्र को छोटा कर दे। यार आप टेंशन मत लो, अल्लाह है ना, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह ऐसा करेगा, अल्लाह वैसा करेगा। औरत मुसलमान सही वो, अल्लाह ताला की पसंदीदा वो, अल्लाह के नबी की पसंदीदा वो, कि जब घर में शौहर आए तो वो टेंशन कम कर दे, उसका गम कर दे। अल्लाह ताला ऐसी औरत को यकीनन पसंद फरमाता और उसके लिए बहुत सारी फजीलतें कुरान और सुन्नत में बताई गई हैं। पॉइंट नंबर 9, मियाँ बीबी को चाहिए कि अपने अंदर के ताल्लुकात दूसरों को ना बताए। यहाँ पर ये बड़ी प्यारी बात पता चल रही है कि मर्द औरत का मिलना, मर्द औरत के जिनसी ताल्लुकात, मर्द औरत के अंदरूनी ताल्लुकात बाहर जाकर नहीं बताना चाहिए। और आजकल ये फुहड़ता इतनी ज्यादा आम होती जा रही है, खास तौर पर नौजवानों के अंदर, कि अपने घर के मामलात दोस्तों को जाकर बताते हैं, अपनी बीवी की खासियतें दोस्तों को जाकर बताते हैं, अपने मिलने मियाँ बीवी के मिलने के और ताल्लुकात को गैरों को जाकर बताते हैं। आप क्या समझते हैं ये जायज है? आप पर्दों को खोल रहे हैं, आप अपने राज को खोल रहे हैं, आप घर की बातें लोगों को बता रहे हैं, जबकि अल्लाह कह रहा है कि वो ढांक लेते हैं, एक दूसरे को छुपा लेते हैं। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। एक दूसरे को छुपाते हैं, जिस्म को ढकते हैं, ना कि खोलते और दिखाते हैं। तो अपने अंदरून ताल्लुकात को गैरों को जाकर बयान नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ी अहम बात हमें पता चलती है। पॉइंट नंबर 10, हालांकि ये पॉइंट है चूंकि कुरान और सुन्नत में आया इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि एक बड़ा अहम चीज ये भी बताई गई है, आज की आयत से पता चलती है कि प्रेगनेंसी के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि जब मियाँ बीवी मिले तो शौहर ऊपर की तरफ हो और बीवी नीचे की तरफ हो। अल्लाह ताला कुरान में, देखिए मैं कहता हूँ कि इन बातों को अगर आप ऐसे लें कि अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ भी नहीं छोड़ा, कुरान में हर इल्म बता दिया, कुरान में हर बात बता दी है कि प्रेगनेंसी का बेहतर तरीका यह है कि मर्द ऊपर की तरफ हो, औरत नीचे की तरफ हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे औलाद के जरियों को आसान कर देता है, औलाद के जरियों को अल्लाह ताला इतना बेहतर बना देता है। आज बे औलाद लोग जो परेशानी के आलम में है, अल्लाह ताला उनके लिए इलाज और ये तरीका बता रहा है। पॉइंट नंबर 11, औलाद का बेऐब होना रब का इनाम है, उसका शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह ने आपको ऐसी औलाद दी है कि जो औलाद बेऐब है, हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं, आंख काम करती है, दिमाग काम करता, कान काम करता, उसका ब्रेन प्रॉपर वे के अंदर वो बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ सही चल रही है, अगर ऐसा बच्चा दिया है ना, शुक्र अदा करो अल्लाह का। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह बेऐब औलाद दे, ऐसी औलाद दे जिसमें कोई ऐब ना हो, ऐसी औलाद दे जिसमें कोई परेशानी ना हो। वरना होता है ना, बच्चे पैदा होते ही किसी को कुछ तकलीफ, कान की तकलीफ, आंख की तकलीफ, दिमाग की तकलीफ, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, उम्र से छोटा है, कितने तरह के मसाइल लोगों के साथ होते हैं। अगर अल्लाह ने आपको नेक औलाद दी है, अल्लाह ताला ने आपको प्यारी औलाद दी है, अल्लाह ताला ने आपको बेऐब औलाद दी है, अल्लाह का खूब शुक्र अदा करो कि अल्लाह तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे प्यारी औलाद दी, बेऐब औलाद दी, ऐसी औलाद दी जिसके अंदर कोई ऐब और कोई नुक्स नहीं है। उस पर अल्लाह ताला का बराबर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, माँ के रुतबे पर गौर करो कि माँ हमल के साथ भी अपने सारे काम पूरे करती है। यहाँ पर अल्लाह ताला, देखिए खैर इस आयत में क्या अल्लाह ताला ने तो पूरे कुरान में और अल्लाह के नबी ने पूरी हदीस में माँ को जो मर्तबा दिया वो किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है, जिससे आपके घर में भी होता है ना, हम लोग माओं के साथ बदतमीजियां कर लेते हैं, और जब हमारी शादी होती है ना तब हमें पता चलता है कि बीवी कितनी परेशान होती है। वो लेटती है तो परेशान, बैठती है तो परेशान, खाना नहीं खा पाती, वो बार बार उसे वोमिटिंग जैसा होता है, पेट भरता है पर खाना, पेट भूख लगती है पर खाना नहीं खा पाती, चलने में दिक्कत, लेटने में दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत, पूरा जिस्म उसका बदल जाता है।
اس کا फिगर चेंज हो जाता है। किसके लिए? औलाद के लिए। औलाद के लिए वो हमल लेकर चलती है। जब बच्चा छोटा होता है, पेट में आता है, तब से लेकर 9 महीने इतना बड़ा बच्चा हो जाए, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, सोचो अगर आपके पेट पर एक कोई चीज बांध दी जाए 3.5 किलो की, खाना भी इसी में खाना है, चलना भी इसी में है, सोना भी इसी में है, नमाज भी इसी में, इबादत सब इसी के अंदर करना है, मर्द बर्दाश्त कर पाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। पर वो औरत उसके बाद भी अपने काम भी पूरे करती है, घर भी चलाती है, जिम्मेदारियां पूरी करती है, सब कुछ करती है। इसलिए माँ के रुतबे को समझो, उस मकाम को समझो। तो माँ की भी इज्जत करो, और अल्लाह ने आपको बीवी दी है उसकी इज्जत करो, क्योंकि वो आपके लिए औलाद पैदा करती है, उस औलाद को बड़ा करती है, उसको अपने पेट में रखती है, उसको अपना दूध पिलाती है, अपना खून दे देती है। उसकी कदर करो, माँ की भी कदर करो, बीवी की भी कदर करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों को बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा अता किया है। अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात भी हमें बड़े प्यारे अंदाज में समझा और बता रहा है। नेक्स्ट, हमल का आसानी से होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत करो। इस पॉइंट को मैंने इसलिए इसमें जिक्र किया है क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है कि शादी होने के बाद औलाद नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद प्रॉब्लम्स, बीमारियां, इलाज, तरह तरह की चीजें होती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को टेस्ट ट्यूब तक जाना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और ये चीज कॉमन होती जा रही है। उसकी वजह आप जानते हैं क्या है? आम तौर पर उसकी एक बड़ी वजह, एक सर्वे के मुताबिक मर्दों में कमी ज्यादा पाई जा रही है, और उसकी वजह गलत फिल्में देखना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, अपने जिस्म को खराब करना, अपने जिस्म की हिफाजत ना करना। ये जिस्म एक अमानत है, ये जिस्म आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर जो खातून आने वाली है उसका हक है आपके जिस्म के ऊपर। आप अपने आप को पहले से खत्म ना कर लें कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाए, वो औरत परेशानी के अंदर चले जाए। देखिए, कहने बोलने में चीज अजीब लगती है, पर अल्लाह ताला ने कुरान में इस चीज को जब बताया तो साइकोलॉजिकल ये चीज साबित है कि जब तक मियाँ बीवी के ताल्लुकात जिस्मानी एतबार से मजबूत ना हो, दिमागी मोहब्बत उनमें नहीं आती, दिल की मोहब्बत नहीं आ पाती। उन दोनों का जिस्मानी एतबार से एक दूसरे के लिए बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर किसी को ऐसा होता है कि शादी होते ही अल्लाह ताला ने औलाद दे दी, हमल हो गया, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम मानो और उसका बार बार शुक्रिया अदा करो। और जिन लोगों के साथ दिक्कतें, उनसे मिलो और पूछो वो कितनी तकलीफ के अंदर होते हैं। और जिनके निकाह अब तक नहीं हुए, अपने आप की हिफाजत करो, ऐसी चीजों में मुलविस अपने आप को ना करो जिससे तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाए, तुम्हारी ताकत और कुव्वत खत्म हो जाए। बच्चे पैदा करने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने दी है उसे अल्लाह के लिए बर्बाद मत करो, अपनी हिफाजत करो। मोबाइल अल्लाह ने दिया, इंटरनेट आपके पास फ्री है, पर इंटरनेट में आप क्या देखते हो, कौन सी वीडियोस इस्तेमाल करते हो, अल्लाह सवाल करेगा। तेरी आंखों से सवाल होगा, तेरे कान से सवाल होगा, तेरे जिस्म से सवाल होगा। क्या जवाब देगा अल्लाह को कि अल्लाह मैं तो अपने आप को शादी के पहले ही बर्बाद कर चुका था? अल्लाह को जवाब न दे पाओगे। अल्लाह ताला तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल करेगा और अल्लाह के आगे तुम्हें जवाब दे होना पड़ेगा। इस चीज पर भी बंदा मोमिन को बड़ा गौर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, कुफ्फारे मक्का का शिर्क आज के मुशरिकीन के मुकाबले में बहुत छोटा था। कुफ्फारे मक्का का जो शिर्क था ना, वो आज के मुशरिकीन के मुकाबले में छोटा था। क्यों? क्योंकि वो औलाद अल्लाह से ही मांगा करते थे, हमल में भी अल्लाह को ही पुकारते थे, पैदा होने तक अल्लाह को पुकारते थे, पैदा होने के बाद शिर्क करते थे। हमारे यहाँ तो पैदाइश के पहले ही शिर्क चालू हो जाता है, यहाँ से औलाद मिलेगी, वहां से औलाद मिलेगी, ये तो कंफर्म बेटा दे देते हैं, यहाँ से तो औलाद हो ही जाती है, इनके कर्म से लड़का हुआ, उन्होंने लड़का दिया, जुमले बोलते हैं। हमारे यहाँ पर सेंटेंस यूज किए जाते हैं, बाकायदा जुमले बोले जाते हैं, अल्लाह से डरते नहीं है। आप अगर गौर करोगे ना, सिर्फ एक मसले में नहीं, कई मसाइल में, तो आपको लगेगा कि कुफ्फारे मक्का का शिर्क फिर भी छोटा था, कि वो लोग तो अल्लाह को बार बार पुकारते थे, जब अच्छे होते थे तभी शिर्क करते थे। जैसे अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि समंदर में जब सफर करते और कश्ती डोलने लगती तब वो अल्लाह को पुकारते थे, खालिस अल्लाह को पुकारते थे, यानी परेशानी में अल्लाह को पुकारते थे। हमारे यहाँ परेशानी में शिर्क ज्यादा होता है, जहां परेशानी आई सारे दरवाजे खटखटाने लगते हैं, कहीं का मटका ले आए, कहीं के धागे ले आए, कहीं दुपट्टा ले आए, जो करना है करते हैं। कुफारे मक्का ये अमल नहीं करते थे। तो गौर करो, तुम कुफारे मक्का की जिंदगी में हो या उनसे भी ज्यादा नीचे रजालत पर जा चुके हो। पॉइंट नंबर 15, जो पैदा हुआ है वो देने की ताकत नहीं रखता। पहले नहीं था वो, कितने बड़े पहुंचे हुए, फला 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 सब, जब तक वो दुनिया में नहीं थे तब तक भी तो दुनिया चल रही थी। देने वाला अल्लाह था, कारोबार चलाने वाला अल्लाह था। तो जो पैदा हुआ है वो कभी भी देने वाला नहीं हो सकता। जो खुद मोहताज था ना, माँ बाप मिलते नहीं तो वो पैदा होता नहीं, तो जो पैदा हुआ है वो देने वाला नहीं हो सकता। जो पैदा हुआ वो पैदा करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे प्यारे उसूल आज हमें बताए हैं। पॉइंट नंबर 16, अकीदा तौहीद अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। इबादत के लायक वही
जो पैदा करने की ताकत रखता है। अगर आप तौहीद पढ़े ना तो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है आपके ऊपर। अकीदा है तौहीद अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे रब से जोड़ा है, अल्लाह ताला हमें ऐसे अपनी तरफ बुलाता है, क्योंकि वो सुनने वाला, जानने वाला, देखने वाला, इल्म वाला, पैदा करने वाला, रोजी देने वाला, कारोबार चलाने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अकीदा तौहीद अगर आपके पास है ना, इससे बड़े अल्लाह की कोई नेमत आपके पास नहीं है। अकीदा तौहीद की बड़ी हिफाजत करो। पॉइंट नंबर 17, हमारी मदद करने की ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ये बोल रहा है, इसका मतलब हमें पैगाम दे रहा है कि मदद तो बस अल्लाह ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे आज हालात बिगड़े हुए हैं, तासुब का माहौल है, परेशानियों का दौर है, कारोबार की तंगी है, कर्जे बढ़ चुके हैं, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाले नहीं। हाँ, आप दर बदलोगे, कहीं और जाओगे, देगा तो अल्लाह, पर आपको दुनिया में दे देगा, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और अल्लाह के आगे मांगोगे ना, वक्त लगेगा, पर देगा अल्लाह वहां भी और यहाँ भी। यहाँ देने पर अल्लाह दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा। तो मदद करने की ताकत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, उसके सिवा कोई मदद की ताकत नहीं रखता है। पॉइंट नंबर 18, मुशरिक से बड़ा कोई गुमराह नहीं है, क्योंकि वो उससे पुकारता है जो सुन ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। मुशरिक से बड़ा कोई गुमराह नहीं है, वो उससे पुकारता है जो सुन ही नहीं सकता, सुन के जवाब ही नहीं दे सकता। वो उसे पुकार पुकार कर कहता है मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो मुशरिक से बड़ा इस कायनात में कोई गुमराह नहीं, क्योंकि वो ऐसों को पुकारता है जो उसे कुछ देने की ताकत नहीं रखते, सुनने की ताकत नहीं रखते, जवाब देने की ताकत नहीं रखते। तो मुशरिक से बड़ा इस कायनात में कोई गुमराह नहीं होता। पॉइंट नंबर 19, पैर, हाथ, कान, आंख सब अल्लाह की इबादत के लिए। पैर अल्लाह की इबादत के लिए है, हाथ अल्लाह की इबादत के लिए है, आंख अल्लाह की इबादत के लिए है, कान अल्लाह की इबादत के लिए है। यानी अपने पूरे जिस्म को, पूरे सरापा को, पूरी बॉडी को अल्लाह की इताअत पर इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला की रजामंदी पर इस्तेमाल करो, यूज करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे तुम्हारे जिस्म के बारे में भी सवाल करेगा। तो ये पैर, ये हाथ, ये आंख, ये कान, ये सारा जिस्म अल्लाह ताला की इबादत के लिए, और उसकी बंदा मोमिन को बहुत ज्यादा कदर करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है कि अल्लाह की सिफात पर अकेले में बैठकर कभी गौर करो। मैं ऐसे अल्लाह को पुकारता हूं जो बसीर है, देखने वाला है, समी है, सुनने वाला है, अलीम है, इल्म वाला है, रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक है, रोजी देने वाला है, रहीम है, रहम करने वाला है। कभी अकेले में बैठकर अल्लाह के नाम और सिफात पर गौर करो, अल्लाह ताला के बारे में गौर करो, कैसा सुनने वाला है, कैसा देखने वाला है, कैसा जानने वाला है, कैसा इल्म वाला है, कैसा रोजी देने वाला, कैसा रहम करने वाला है। अल्लाह की सिफात पर गौर करो, अल्लाह ताला की सिफात को याद करो, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा मोमिन को बड़ी ताकत, बड़ा इत्मीनान, बड़ा सुकून अता करता है कि अल्लाह की सिफात पर बंदा गौर करे। और लास्ट पॉइंट नंबर 21, बातिल से न डरो, न उसकी ताकत से डरो, अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह के नबी को देखो, पहले अल्लाह ने कहा तौहीद बताओ, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, और एंड में क्या कहा, जो करना है करो, लाओ तुम्हारा प्लान, जो है करना है करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बातिल की ताकत से मत डरो, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। वही देने वाला, वही अता करने वाला, वही परेशानी दूर करने वाला, वही तकालीफ दूर करने वाला, उसके सिवा इस कायनात में अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बातिल से ना डरो, बल्कि अल्लाह ताला का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करो। हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल, कि आज की आयत पर हम क्या अमल कर सकते हैं। नंबर 1, लोगों को जन्नत की बशारत दो और जहन्नम से डराओ। यानी अगर अल्लाह ताला ने आपको दावत का किरदार दिया है, दाई का किरदार दिया है, तो जन्नत की तरफ बुलाओ भी और जहन्नम से डराओ भी। ये दोनों काम आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरे करना पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, हर वक्त शिर्क से पनाह मांगो। अल्लाह मुझे शिर्क से बचाना, अल्लाह ईमान वाली जिंदगी देना, अल्लाह ईमान पर खात्मा देना, शिर्क से बचाना, बिदअत से बचाना, खुराफात से बचाना, कुफ्र से बचाना। बार बार अल्लाह से दुआ मांगा करो, बार बार अल्लाह ताला को याद किया करो। पॉइंट नंबर 3, मुशरिक से जब बात करो तो दलील के साथ बात करो। अल्लाह यहाँ पर देखिए ना क्या प्यारे अंदाज में समझा रहा है। अच्छा, जिनको पुकारते हो वो पैदा हुए क्या, या वो पैदा करने वाले कैसे बन गए जब पैदा हुए? अच्छा, सुन सकते हैं क्या? अच्छा चलो, इनके पैर हैं क्या चलने के लिए, हाथ है क्या पकड़ने के लिए, आंखें क्या देखने के लिए, कान है क्या सुनने के लिए? तो जब मुशरिक से बात करो ना तो दलील के साथ बात करो। दलील से जब बात होती है ना, अल्लाह ताला उस बात के अंदर असर पैदा कर देता है। नंबर 4,
बंदे हो तो अपने अंदर बंदगी का एहसास पैदा करो। मैं तो पैदा हुआ, मैं तो बड़ा मोहताज हूँ, मैं तो बड़ा फकीर हूँ, अल्लाह ही जानता, अल्लाह ही ताकत वाला है। तो बंदे हो तो बंदे बनो ना, बंदगी का एहसास लाओ ना, अपने आप को बंदा मानो ना, तभी जाकर अल्लाह ताला इज्जत, ताकत, कुव्वत और सरफराजी अता करेगा। और आखिरी बात, औलाद के लिए बार बार अल्लाह को पुकारो, बार बार अल्लाह से औलाद मांगो। अरे देखिए हजरत मरियम को जब अल्लाह ताला ने औलाद दी तो जकरिया दुआ मांग रहे हैं, नबी है, और क्या कह रहे हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ए अल्लाह अपनी तरफ से प्यारी ज़ुर्रियत दे देना, ए अल्लाह ताला अपनी तरफ से औलाद दे देना। अल्लाह ताला से औलाद मांग रहे हैं, हजरत जकरिया औलाद मांग रहे हैं। तो अगर आपके पास औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला से औलाद के लिए बराबर दुआएं मांगो, अल्लाह ताला ही देने वाला और अता करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन बातों पर आज की हमारी ये क्लास मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला तू कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। जो दीन हम जानते हैं, जो शरीयत हम जानते हैं, उसको पढ़ने और समझने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम जब तक जिंदा हैं हमें ईमान की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारा जब भी खात्मा हो ईमान पर खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।